Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Wildcard Rawcast. I'm your host Nisha and with me is my co-host Farwa. And today we have our new guest, Arham. And honestly, we wouldn't like to introduce him ourselves because his story and his introduction deserves to be said himself. So Arham, would you like to introduce yourself and tell a bit about your journey? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड हेलो टू यू गाइस हु आर वाचिंग अच्छा माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम उवैस एंड आई एम currently a student of NUST Business School doing accounting and finance in my sophomore year. So this is like a general introduction which I gave, but there's much more to it. वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता get into it. Exactly, he has an amazing background story और वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रिवील करेंगे because this podcast is going to be really conversational और बिल्कुल raw होने वाली है. So be easy, जैसे हम लोग बात करते हैं उसी तरह से होने वाला है. तो Arham, my first question would be, was it always NUST? Straight to it, right? Straight to it. No, as some of the people who know me, they know that NUST wasn't the first option for me. Alhamdulillah, I have the honor of serving for the Pakistan Air Force as an aviation cadet for 7 months. Or before coming to NUST, I was there, but divine intervention had to play, and unfortunately, I suffered a spinal fracture, which resultantly got me medically boarded out. So then I had to end up here in NUST. But a fun fact is, before going to the Air Force, I was actually selected for the batch 2023 of NUST in the same degree which I am currently in. Nice. So yeah. So how did you end up at first Air Force? Obviously, I think इसका मैं यही आंसर दूंगा कि like हम दोस्त यार सारे इकट्ठे होते हैं. There's always थोड़ा सा passion होता है ना to serve for the motherland and stuff ना. तो हमारा friend group हम सब ने कहा कि we will apply and सब करते हैं. And क्योंकि obviously seeing the skies और जब जहाज jets उड़ते थे तो there was always a passion and to serve the motherland in any capacity I could. तो फिर हमने इकट्ठे अप्लाई किया सब ने और अल्हम्दुलिल्लाह SSB भी सबकी होगी. कोई आर्मी गया, कोई नेवी गया, and I ended up at Air Force. An amazing journey. It was tough. ज़ाहिर बात है like जो लोग बात करती है ना कि it's very easy या फिर इनकी तो life बहुत easy होती है. So I can tell you it's not. I'm a living example. Like I got out of an injury during the rigorous training. I mean, it was your passion since childhood, right? So, वो आपका passion बचपन से रहा and you dreamt for it with your friends and then you ended up in it, वो भी मुश्किल से. And then misfortune happened and so how was it? Was it, I'm sure it wasn't easy for you, but how did you manage that stress and everything? अच्छा मैं इसकी ना आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ. एक्चुअल स्टोरी मतलब वो तो स्पाइन फ्रैक्चर तो हो गया बट वो जो हुआ था ना मुझे इट वाज लाइक थोड़ा अर्लियर पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग. आफ्टर दैट आई केम होम ऑन फॉर सिक लीव और फिर वापस भी गया तो आई ट्राइड टू कंटिन्यू एज मच एज आई कुड ना. बट द थिंग दैट हैपेंड वाज के आई हैड दिस स्पाइनल कॉलर और सब कुछ ना. तो वी वर 101 कोर्स मेट्स इंक्लूडिंग मी. तो अब मुझे था कि इंजरी के बाद ना लाइक मुझे रगड़ा कहते हैं रैगिंग को ना, रगड़ा वगैरह बैन था मुझे मिलना एंड एक्टिविटीज़ में आई हैड टू गो बट आई डिडंट जॉइन. सारी बात आई कुडंट जॉइन. सो वो एक ना even before getting medically boarded out it was a very stressful and depressive situation के सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते थे. I was the one like मैं बैठा उनको देख रहा होता था कि यार ये कर रहे हैं. फिर वो एक sort of alienation factor आहिस्ता आहिस्ता आता कि which was मैं कहूँगा कि it was very sad bad time. तो I didn't know what to do and stuff ना. तो बीच में फिर I had thoughts के यार मैं खुद ही क्यों ना छोड़ दूँ ना, क्योंकि अगर ऐसा ही है and I know I'm unable to continue. But then वही होता था कि यार अब आ गया हूँ तो जैसा कि तैसा है बस करो. तो लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स ने फिर खुद ही कर दिया. टफ था. I would be really candid with you guys. It was a very depressive part of my life those 2 to 3 months because क्योंकि एक when you're in the forces ना तो एक पूरा एक set path होता है आपका for life ना till retirement. आपको पता है basically the car is being driven and you're just on the passenger seat and you're following the road, right? वो आप अपना obviously professionally excel अपने करना होता है but there's a defined path. Talking about here, you guys know and I myself know कि we have to create this path on our own selves. तो वो एक factor एक दिमाग में आना कि अब मैं क्या करूँगा ना.
तो इट्स बहुत बड़ा ये था, तो काफ़ी था. फिर अल्लाह ऑब्वियसली लाइक मैं इसमें कहूँगा कि अल्लाह हेल्प मी अलॉट इन दिस मैटर. मतलब I talked to him and नमाज पढ़ता. I said Allah, it's up to you. I don't know what to do and I don't know what will happen from here and I have no way out. You're gonna take me out of this. तो तब नहीं लगता था, तब लगता था कि बस it's the end. But वही मैं अब हर किसी को अगर बात करता हूँ कि वक्त को वक्त देना सीखें, तो वो फिर मैंने भी वक्त को वक्त दिया है. आपने अभी स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात की विच इज़ रियली नाइस. तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन कुछ लोगों का बाद में आता है, कोई हिट करती है कोई चीज़, एकेडमिक स्ट्रेस बोल दें, कोई भी फैमिली स्ट्रेस, कोई वो बाद में वो स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका डेवलप होता है. वाज इट ऑलवेज फॉर यू कि आप ऐसे कनेक्टेड थे कि बस अल्लाह ताला अब जो होगा आप करेंगे, या डू यू थिंक कि इस सब के बाद आपका वो फेथ आया कि अल्लाह ताला अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू आर द वन हु इज. अच्छा, इसके ना एक बड़ा लाइक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. ये बात होती है ना कि कहना बहुत आसान होता है कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, यकीन रख लेना. द फैक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ, ये कहना बहुत आसान है, बस इट्स वेरी हार्ड टू यू नो एक्चुअली अडॉप्ट इट एंड प्रैक्टिस इट. तो मैं जाने से पहले भी इस्तिखारा करके गया था ना. अच्छा, अब एक और मज़े की बात, लाइक आप लोग ने, मैं एक बता देता हूँ, इफ़ यू गाइस डोंट नो कि मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड आई लव टू क्रिएट कंटेंट एंड स्टफ ना. And I have a very dynamic personality in a way कि I want to learn more things, I want to express myself ना. तो forces में वो चीज़ थोड़ा सा ना आपकी हो जाती है, right? Creative हाँ, side. creative side थोड़ी आपकी हो जाती है, वो फिर थोड़ा सा. तो तब भी मुझे थोड़ा होता था कि what if मतलब वो है ना. तो फिर मैंने इस्तिखारा किया ना, इस्तिखारा किया कि अल्लाह if I'm taking this step to make it right for me, वो ना. तो वो थोड़ा सा बिलीफ वाला फैक्टर था ही throughout, और अभी भी है, because I know कि अगर आप एक चीज़ पे faith रखें, एक प्रॉपर तरीके से रखें, it does work out for exactly, you. yeah. I believe that. It does. So how did you end up at Nast? Nast का ख्याल कैसे आया? Was it always at the back of your mind के backup ये रहेगा मेरा? हाँ, as I told कि मेरा 2023 में like जब अप्लाई करता फॉर द एयरफोर्स, तब भी नस्ट में एडमिशन हो गया था. तो दोस्त वगैरह भी थे, तो जब हम एयरफोर्स में होते थे ना, मैंने आपको बताया ना, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी लाइक पैशन तो था, बट देन एक ना देयर वाज ऑलवेज अ व्हाट इफ इन माई माइंड ना. स्पेशली जब इंजरी होगी उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ गया ना कि अब मैं यहाँ कर भी नहीं पा रहा, अगर मैं ना आता तो बाहर एक्सेल कर रहा होता है वो. तो इसका ना मैं, इफ़ एनी वन वॉचिंग हेयर इज़ एन एस्पिरेंट, तो मैं उनको ये बात करूँगा कि आप अपने ख़ुद को जानो कि यार आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते. बिकॉज लोगों की बातों में मत आओ, बेशक फैमिली है या क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इज़ योर लाइफ. एंड वही बात है कि एक व्हाट इफ था. फिर इसका ना मैंने अपने अंदर सोचा कि 15 to 20 years down the line, if I end up in the Air Force, will I regret not leaving, या फिर will I regret not being here जब मेरा medically board out वाला सीन होता था, या फिर if I get out, will I regret getting out ना. तो वो जब मैंने assess किया, तो the regret of staying in the Air Force was more than not staying, knowing my personality. तो वो फिर थोड़ा सा things started to make sense themselves. अच्छा, कंटेंट क्रिएशन का यू सेड आपको शुरू से शौक था एंड यू वर स्केप्टिकल कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ. तो एयरफोर्स में जैसे आपने बताया बहुत स्ट्रक्चर्ड आपकी रूटीन होती है एंड क्रिएटिव साइड पे आपका जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सो डू यू बिलीव कि यहाँ आके आपका उस तरह ज़्यादा. अच्छा, इसकी बड़ी मज़े की बात है कि जब मैं 9th लॉकडाउन कोविड एरा ना, उसमें मेरा ये कंटेंट क्रिएशन वाला स्टफ चला था मेरे भाई के साथ ना. तो हम काफ़ी, आई हैव अ ट्विन ब्रदर ना, तो हम इकट्ठे वो करते थे, कंटेंट वगैरह सब कुछ बनाते थे, बड़ा मज़ा आता था ये वो ना. तो लेकिन फिर ये हुआ कि वो एयरफोर्स वाला सीन आ गया, तो वो कंटेंट क्रिएशन थोड़ी हट गई. फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं, फिर जब वापस आया तो इट वाज लाइक अराउंड जुलाई लास्ट ईयर 2024. तो मैंने सोचा कि वैसे ओरिजिनली आई हैड अ यूट्यूब चैनल, उस पर वीडियोज़ वगैरह बनाते थे. आई थॉट व्हाई नॉट क्रिएट एन इंस्टाग्राम पेज एंड फॉर अपडेट्स देयर and just to see where this goes na, because I always was an avid, क्या कहते हैं, I had a avid passion for you know content creation and expressing myself and trying different things बार बार ना. तो वो फिर वहीं से दोबारा क्या कहते हैं rejuvenate हो गया. आपका जो ये सारा था कमिंग टू नस्ट और वो फेज़ के क्या करूँ अब जाना है, अब तो डिसाइड कर लिया है नस्ट जाने का. तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनका क्या मतलब रिएक्शन था? डिड दे सपोर्ट यू या उनका था कि नहीं यू शुड स्टे हियर? अच्छा, इसकी भी एक है कि शुरू में लाइक जब ये ओरिजिनल लाइक जब मेरा मेडिकली बोर्ड आउट नहीं हुआ था,
जब मैं खुद आई हैड थॉट्स ऑफ लिविंग ना, तो वो घर वालों की तरफ से थोड़ा सा था, फैमिली की तरफ से कि डोंट लीव ना, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर राइट इन देयर ओन वे कि यूर इन अ सेट पाथ और तुम्हारा सब कुछ सेट है, तुम क्या करोगे बाहर जाके ये वो ना। तो फिर इट वाज़न्ट फोर्स्ड बट आई से इट वाज काइंड ऑफ इम्पोज्ड कि फिर मैं कहता था यार क्या ही रहे हैं तो फिर लेट्स स्टे ये वो ना। बट जब थोड़ा वक्त गुजरता गया और ये दिस फेज नियर्ड ऑफ मी गेटिंग आउट ये वो ना, डॉक्टर्स ने भी जब लिख दिया ना, तो my parents were very supportive. Like I am so grateful for them if they're watching. I don't know if you guys are, but thank you for everything. Or they were very supportive. My father, he told me कि whatever decision you take, even if they do not like medically आपको बोर्ड आउट अगर एंड पे ना भी करें ना, बोले स्टे, आप चाहते हो बाहर निकलना, I will 200% support you. So that was a very motivating factor क्योंकि at the end of the day, even आपके friends भी साइड पे हो जाते हैं, your family is there. अगर वहाँ से support है फिर the whole world can be against you. Whole world can be against you. I have this question for you कि जब आप Air Force में थे, you probably had it all planned out कि Air Force इसके बाद ये सब. So do you still think कि ऐसा ही है कि you still need to plan it out अभी से? क्या फ्यूचर के हवाले से यार एक आउटलुक होनी चाहिए आपके पास कि where do you want to be in life ना, what are your goals, क्योंकि अगर वो आप एक डिफाइंड होंगे, मतलब by saying this it doesn't at all mean कि एक like रिटर्न इन स्टोन वाली चीज़ हाँ होती रहती है, लेकिन एक थोड़ा सा डायरेक्शन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरी बात है कि आई वांट लाइक गिव अ टेड टॉक वन डे, लाइक इट्स वन ऑफ माय गोल, लाइक इट्स अ प्रॉपर टेड टॉक, एंड आई वांट पब्लिश अ बुक नॉवल. आई हैव अ पब्लिश्ड बुक पोइट्री एंड प्रोज की, बट आई वांट टू पब्लिश माय ओन नॉवल एंड ट्रैवल द वर्ल्ड. ये सब ना, तो मेरा थोड़ा सा लगता है ड्रीम, बट मैं कहता हूँ कि why not ड्रीम ना, मतलब करो ड्रीम्स आपके हमेशा ऊपर ही होने चाहिए. Who's stopping you? Literally who's stopping you? It's your life, आप डिसाइड करोगे. एंड आई थिंक कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं अपनी एक्सपीरियंस में और उनके फियर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसमें वो इतना ज़्यादा खुद अपने एक्सपीरियंसेस लिमिटेड कर देते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा कि वो क्या कहेगा, मैं ये नहीं करूँगा कि वो क्या कहेगा. बट आई थिंक दिस इज़ अ रियली नाइस थिंग अबाउट दोज पीपल जो हर पॉसिबिलिटी पे जाते हैं कि भाई मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा. जस्ट लाइक यू सेड कि आई वांट टू गो एंड डू अ टेड टॉक विच इज़ रियली अमेजिंग, एंड इंशाल्लाह आई रियली प्रे कि आप जाओगे एंड आई रियली बी हैप्पी फॉर यू. अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब आप नर्स आए तो लाइक डिड यू फील एलियन हियर कि लाइक योर फर्स्ट डे, उसका एक्सपीरियंस बताएं. I knew this was coming. So there's a thing called an imposter syndrome ना. Like for the viewers here जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा बताऊंगा. It's basically feeling like the place you're in या things you're doing in that specific place you don't belong or they don't matter ना. तो वो imposter syndrome थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा kick in किया था तब जब मैं दोबारा एंट्री टेस्ट्स की तरफ आया था ना, क्योंकि एक सारा प्रोसेस में पहले कर चुका था, फिर मैं दोबारा ये सब मुझे करना पड़े. एंड इवन आई गॉट सिलेक्शन पहले ना, पहले आई ईमेल देम कि आई गॉट सिलेक्शन, इज इट पॉसिबल कि ऑन दैट बेसिस आई गेट सिलेक्टेड, एंड दे सेड नो ना. तो बड़ा हिट किया. फिर उसके बाद जब इसका ना क्या हुआ कि सिलेक्शन भी हुई तो अच्छा सब चल रहा था. आई एम ऑलवेज अ पर्सन हु कीप्स अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक. मुझे जो लोग जानते हैं, मेरे दोस्त वगैरह, दे ऑल नो दैट ना. एक्सट्रोवर्टेड हूँ और लाइक कहते हैं कि यू आर फन टू बी अराउंड. आई होप दे मीन इट. सॉरी टू इंटरप्ट यू. ये जो आपका पॉजिटिव आउटलुक है, जो एवरीबडी नोज यू दैट वे, डू यू थिंक ये शिफ्ट आया था कि आप पॉजिटिव से एकदम जो आपका डिप्रेसिव फेस था उसमें वर यू ऑलवेज दैट पॉजिटिव पर्सन देयर एज वेल? If I say yes, it's a lie. If anyone says yes, it's a lie. No one is a perfect individual. We have our ups and downs, and that's what makes us human. As cliche as it sounds, but yes. तो आया था, बुरे वक्त आते हैं, लेकिन फिर उन्हीं वक्तों में आपने लाइक you can't find yourself, बस it just happens. वही कहते हो ना, वक्त को वक्त देना सीखो. प्रोसेस वो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है. हो जाता है. ट्रस्ट द प्रोसेस. और सॉरी टू कट यू नाउ, जो आपने अभी बात की कि कुछ लोग होते हैं कि फियर ऑफ रिजेक्शन वाली बात ना, which is very right. लेकिन मेरा ये टेक है कि not everyone can be like me in a sense, जो they know how to deal with things या how to talk, you know. तो फिर अगर आप लोग भी देख रहे हैं और लाइक हमें चाहिए कि हम अगर हमारे दोस्त हैं, we see potential in them ना, तो हम ट्राई टू इनकरेज करें इन अ वे दैट इजंट फोर्स्ड और बीइंग पुश्ड टू दैट ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लॉस्ट इन नॉट इवन स्टार्टिंग. तो अगर आप उनको वो दिखाएं कि यार अगर मैं कर सकता हूँ
you can do it as well. बट आई फील लाइक इसमें क्रिटिसिज्म भी काफ़ी आती है. जो लोग वो होते हैं ना कि आई वांट टू डू एवरीथिंग एंड आई कैन डू एवरीथिंग, लेकिन करते नहीं. नहीं करते भी हैं. जैसे आप बता रहे हैं कि आपको करना है एंड आपके जिन लोगों को करना होता है ना उनके सराउंडिंग में हर वो उनकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही होती है. सबको पता होता है कि भाई इसको करना है. एंड फॉर सम रीज़न मुझे भी लग रहा है कि मैं भी इसी तरह की हूँ कि मैं बोलती हूँ कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, मुझे ये करना है वो करना है. मैं काफ़ी ज़्यादा बोलती हूँ कि आई वोंट सेटल फॉर लेस, कि बस इतना सा करके डन, ज़िंदगी ख़त्म. तो आई वांट टू डू एवरीथिंग एंड बट विद दैट क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आती है. आपके अपने फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं. बोलते हैं कि भाई ज़मीन पे आ जाओ, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता. एंड सीक्रेटली वो आपसे ना समहाउ आप देखते हैं कि लोग आपसे बहुत इनसिक्योर होने लग जाते हैं, विच इज़ हार्श रियलिटी. एंड आई जितना मैं ऐसे मैं ग्रोथ हो रही है, आई हैव सीन दैट, आई हैव हर्ड. एंड मेरे अपने दोस्त जो कि लाइक आई considered them to be very close to me, and I heard कि they said stuff behind my back and stuff ना, कि इसका content ऐसा, तो ये बंदा ऐसा, तो ये undeserving and stuff like that ना. तो इसमें ये होता है कि sometimes ना आए ना, तो वही मैं कहता हूँ do not be emotionally reactive, be strategically responsive ना. तो आप it's a very this statement sounds very कि यार ये क्या बात है, लेकिन इसको अपनाना एक बहुत मुश्किल आर्ट है. It's really hard, yeah. क्योंकि are they living your life? No, you're living your own life ना. तो ये आपके अपने ऊपर है. सीधी बात है, keep those around you who actually like are your supportive. क्योंकि हम इस age of life पे हैं, stage of life sorry, कि we cannot afford being negatively जो negative suggestions हैं ना उनको अपनाना और अपने आप को उस पर करना. तो वो हमारे अपने ऊपर ही होता है. और सीधी बात करूँगा कि क्या कहते हैं उसे, वेट आई हैव टू लाइक प्रोसेस दिस ताकि मैं कोई गलत बात ना निकल दूँ. वो ये है कि अगर आपको पता है ना आपकी एक अंदर की आवाज़ है जो आपकी कहते हैं इनर वॉइस बेसिकली ना, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग ना, no matter how right you believe it to be, this inner voice will tell you, it will eat you out. रात को आपको देखें ना, तो trust it. और अगर आप वाकई सच हो and you know your principles, your morals and everything that you're doing is for a cause that is true to your own personality and personal self, so everything else just doesn't matter. Think कि ये जो thought आपको bother कर रही है 5 साल बाद इसका कोई effect है आपके ऊपर? नहीं. तो 80 to 90% तो वही निकल जाती हैं. तो ये लग मैं बहुत अच्छा रहूँगा बात करते हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अडॉप्ट दीज थिंग्स एज वेल ताकि इट हेल्प्स मी. इन द एंड यही होता है कि आप ट्राई करो. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपका फर्स्ट डे कैसा था में? ओह यस, हाँ हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे. अच्छा हाँ इसके अच्छा ये बड़ा अच्छा था. तो नस्ट ना एक बड़ी अच्छी चीज़ कराते हैं, विच कॉल्ड द ओरिएंटेशन. वी ऑल नो दैट राइट. तो वी ऑल नो पहला बंदा है जो कह रहा है कि अच्छी चीज़ कराता है. बिकॉज मैंने जिस बंदे से मैंने नहीं ओरिएंटेशन की थी बिकॉज आई केम लेट, लेकिन मैंने जिस बंदे से सुना है ना इट्स लाइक ख्वारी गंद ये था वो था. अच्छा ओरिएंटेशन गाइड एज वेल इस ईयर ओजी कंट्रोवर्शियल टॉपिक. अच्छा क्यों लोग ये कहते हैं? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ व्हाट ओरिएंटेशन एक्चुअली इज. मैं अपनी बात से रिलेट करूँगा एसेंस ऑफ लाइक दिस. हम जब ये यूनिवर्सिटी लाइफ वगैरह में आते हैं ना, नॉट एवरीवन इज़ लाइक अस. बार बार मैं ये बात करता हूँ, पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ठीक है, दे कम ऑन सेलेक्टेड ऑन मेरिट्स. कुछ ऑल बॉयज़ कॉलेज में रहे हैं पूरी ज़िंदगी, कुछ ऑल गर्ल्स में रहे हैं, कुछ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ बहुत ही ओपन बैकग्राउंड से आए हैं. तो ये ओरिएंटेशन होती है, इट्स सपोज टू बी एन अमेलगम ऑफ ऑल ऑफ देम टू कीप एवरीवन इंक्लूडेड. हल्ला गुल्ला तो एक वैसे करते हैं ना. The actual essence of this is that everyone has a very perfect transition from their previous life to here. तो वो perfect transition मेरी हो गई. I would like to name this person Anas Hashmi. He was my orientation guide, and he actually मतलब मेरा जो I'm sorry like बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको मैं mention कर सकता हूँ, लेकिन जो मुझे याद आता है वो अभी specifically इसकी बात करें तो Anas Hashmi, you're a goat. तो he was my orientation guide. और I play golf ना, नेशनल लेवल पे खेल लेता हूँ, मज़ा आता है. लाइक आई लव द गेम ऑफ गोल्फ. जो मुझे फॉलो करे लाइक कमिंग टू इट हाँ आएंगे. तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, तो पहली कॉल आती है आपको ओरिएंटेशन गाइड्स की तरफ से ना. तो उसने पूछा ये होना कैसे हो, वो ना बड़ा फ्रेंडली तरीके से, कांग्रेचुलेशंस दैट यू सिलेक्टेड नस्ट एंड ये एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ही सेड व्हाट डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स है वो ना. तो ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस भी होते थे ओरिएंटेशंस में. तो आई सेड आई प्ले गोल्फ. मतलब जो आपके कॉम्पिटिशन होते उसमें नहीं. तो even if he didn't like golf, he was such like
enthusiastic about it कि यार पहला मेरा वो फ्रेशी है जो गोल्फ खेलते हैं, tell me about it, this and that ना. तो that was a very क्या कहते हैं इसे petty thing to some, to many, लेकिन वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी थी कि I felt like यार कोई है जो बाकी मेरा acknowledge कर रहा है, सुनना चाह रहा है. तो that made me look forward to the orientation. फिर सन की एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी थी और सब कुछ, दे kept everyone together. ऐसा फील नहीं हुआ कि कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है. तो जो एक मेरा जो मुझे एक डाउट्स थे ना कि I won't be able to settle and ये वो ना वो vanished as it is. And again thank you so much to that guy. और उसी की ये जो चीज़ें थी that made me क्या कहते हैं, तभी मैंने कर लिया था कि now मेरे जैसे और लोग भी होंगे who want to be you know feel included, who are having doubts and stuff ना. तो फिर मैंने ओरिएंटेशन गाइड बनना है नेक्स्ट ईयर, जो कि मैं बन गया है. अल्हम्दुलिल्लाह I think I lived up to the expectations I had from myself. But many people say that orientation is run only for the OGs. You have been a freshie and an OG as well. So what do you think about that? वही बात है ना, it's a myth which we have to debunk. Fun OGs के लिए obviously होता है. क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा emotionally connect हो जाते हैं. इससे हमारी 9 to 5 meetings चल रही होती हैं daily from like 20 days before the orientation and stuff. तो वो फिर हम क्या कहते हैं, हमें यही सिखाया जाता है, हमारा यही इरादा होता है कि we have to, the event is for the freshies not us. ठीक है, फन तो हम करेंगे लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हमारा कोई कंप्लेंट ना आए, एवरीवन का ट्रांजिशन पीरियड अच्छा होता है. तो एज अ फ्रेशी मैंने यही बात देखी थी अपने ऑडिशन गाइड में, यार दे वर पुटिंग सच एफर्ट्स फॉर अस वॉलंटरी. व्हाई वुड एनीवन डू इट? ओनली कि हमारा एक जो है ना अच्छा गुजर जाए, वो जो ग्रुप चार्ट्स एंड एवरीथिंग बनती है. फिर वही चीज़ मैंने लाई और मेरे 1-2 रील भी हैं जिसमें मैंने डाले थे कि ऑल द सपोर्टिंग कमेंट्स फ्रॉम द फ्रेशीज. तो अगर इफ़ इट वाज ओनली फॉर द ओजीज या सिर्फ वो फन करते तो आई डोंट थिंक व्हाई वुड अ स्ट्रेंजर मैसेज मी कि यू मेड माई लाइफ, यू मेड माई ट्रांजिशन पीरियड. तो इफ़ एनीवन हैज़ डाउट्स जस्ट go see that. Talking to you makes me feel like it's all about mindset, क्योंकि you're literally the first person जो मुझे अच्छी बातें भी बता रहा है about orientation, because again मैं नहीं आई थी, so I couldn't experience it myself. But बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरी नज़र में मुझे बहुत मज़ा आया होता है, and I see the positive things. लेकिन वही बात होती है ना, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको भले कितनी भी अच्छी चीज़ हो जाए, भले कुछ भी हो जाए ना, दे विल फाइंड आउट द नेगेटिविटी इन दैट. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल, यार हमने अभी भी वो नहीं पूछा, वो नहीं आंसर अभी तक हमारा हुआ कि आपका कैसा था लाइक स्टार्टिंग पीरियड ना. तो बताया ना मैंने, ओरिएंटेशन के बाद सब कुछ ठीक हो गया. हाँ बेहतरीन, that was the make or break situation. ओरिएंटेशन के बाद लाइक ओरिएंटेशन बाद क्लासेस वाला भी तो फेज आता है ना, क्लासमेट्स के साथ. I think he is really an extrovert. हम लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी. अच्छा, मेरा ये था कि क्लासेस में मैं तो पहले दिन CRB बन गया एंड पीपल वो मुझे खुद ही उन्होंने एडवोकेट कर दिया, स्पीच वगैरह. अच्छा, मेरा ये कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों के साथ बात करने में या आइस ब्रेक करने में मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई ना. तो वो ओरिएंटेशन वाला एक फेज था जिसमें मुझे था कि मतलब इस वही बात है ना, क्यों मैं बार बार ओरिएंटेशन कर रहा हूँ, इट मेक्स और ब्रेक्स योर 4 years. अगर वो एक्सपीरियंस बुरा गया तो यू नॉट कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर हैपेंस यू कैन से. तो वो ओजी पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसके फ्रेशमैन ना वाकई दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड ग्रेट कनेक्शंस हियर. नास्ट आर काफ़ी अच्छे लोग हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड. तो आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, साथ में बताया, तो ये रीच वगैरह आपकी बढ़ी कब? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, I've never done it for reach. ना मैं करूँगा, I've done it because I love the passion and stuff. ना मैं काफ़ी अरसे से क्रिएट करूँ, मेरी बड़ी स्लो रीच आ रही होती थी. 500-600 फॉलोअर्स पे स्टक किए हुआ ना. फिर आई वेंट टू कैनेडा समर्स पे ना फॉर ट्रैवल, फैमिली के साथ था. तो वहाँ काफ़ी अच्छा मैंने कंटेंट वगैरह बनाया, बड़ा मज़ा भी आता था और लोग जो देखते थे वो एंजॉय करते थे. वो मेरे लिए वर्क होता था, क्योंकि वही आपने बात की ना, माइंडसेट की है. लाइक फॉर एग्जांपल इट्स 1000 व्यूज़ ऑन अ रील, राइट? कैन यू इमेजिन 1000 पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सोचो अभी हम कितने लोग हैं फिर, लाइक 2-3 ईयर एंड 3-4 वो प्रोडक्शन में. इधर यहीं इसी रूम को अगर हम भर दें तो 1000 ऐसे, तो वो बात है ना कि देख तो रहे ना, कोई पसंद तो कर रहे ना. तो फिर ऐसे से रीच हुई. फिर मैंने एक रील डाली थी, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह गुड GPA है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मैं होता था. इट्स सच अ रैंडम स्टफ, ये रीच, ये वायरल होना ना. तो मैंने कहा यार हर कोई कंटेंट के बारे में बना रहा है, नस्ट कंटेंट या एजुकेशन कंटेंट, क्योंकि एग्जाम सीजन्स, एंट्री टेस्ट सीजन्स ना. मैंने कहा चलो हम भी बनाते हैं ना. वैसे मैं बड़ा फिट मेहनत करके कंटेंट बना रहा हूँ. उससे मैंने वैसे ही रील डाल दी कि हाउ आई मैनेज टू गेट 4.0
and still had the time of my life, which was true. You got a 4.0. Yeah. That is really Yeah, amazing. in my second semester, alhamdulillah. तो फिर मैंने पूरा अपने how I felt के मैंने किस तरह मैनेज किया सब कुछ लिख दिया. और ऐसे मजे की बात थी कि कनाडा में ना टाइम डिफरेंस था, तो मैं स्केड्यूल कर रहा था पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ना, और मैं सो गया. वहाँ रात हो रही थी और पाकिस्तान के दिन टाइप को सीन था. मैं सो गया, उठा तो लाइक I got so many comments, likes, views. I was like, dude, what? क्या फीलिंग थी वो? Yeah, what is अजीब फीलिंग है. like इतनी मेहनत करके मैं कंटेंट बनाऊं और वो वायरल नहीं हो रहा, ये मैंने वैसे ही डाल दी. It went viral और काफी लोग मेरे पूछने शुरू हो गए कि यार ये वो. I got a lot of comments कि guide us, nust ये वो. तो फिर मैं भी करता रहा आहिस्ता वो. फिर कंटेंट तो मैं पहले भी बना रहा था, तो फिर मैं बनाता कि आहिस्ता रीच पड़ती कि फिर ओरिएंटेशन में मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैंडिड और नेचुरल कंटेंट भी होना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली द SMM टीम्स दे डू अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क, ठीक है, अमेजिंग वर्क. लेकिन फिर मैंने फील किया कि व्हाट्स मिसिंग इज द इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यूज के जो नेचुरल स्टफ होता है. तो फिर मैंने उसकी भी बनाई और वो आहिस्ता कंटेंट रीच बढ़ती गई एंड अल्हम्दुलिल्लाह पीपल लव्ड my content. Freshies loved it and people loved it. I loved it too. Thank you. Your content is really amazing. मैं वैसे If you're being honest. Yeah, I'm really being honest. Thank तभी you. मैंने आपको बुलाया है. Thank you. GPA की बात करें तो आप फ्रेशमैन हमारे उनको कैसे गाइड करेंगे, और सोफोमोर्स लाइक अस वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हैं अभी फॉर मेंटेनिंग द GPA. वुड यू लाइक टू गिव अस सम टिप्स प्लीज? बिल्कुल. अच्छा, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चलो सही है, ठीक है, प्लीज़ माशाल्लाह बोल दें जो देख रहे हैं. अच्छा, इसका वेरी इजी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉलेज एंड A levels लाइफ दैट वी कम फ्रॉम ना. उसमें बहुत क्रैम A levels में तो इतना नहीं होता है, FSC में अभी अब ख़त्म हो गया, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, राइट. यूनिवर्सिटी का वर्कलोड आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक अभी मैं NBS में होता हूँ कि कोई CS का देख रहे हैं, इज गोना किल मी फॉर दिस. बट मैंने एक सेमेस्टर अकेडमी एयर फोर्स अकेडमी में भी लगाया है, एंड इन दैट आई वाज डूइंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग. तो वहाँ पे इंजीनियरिंग वाला मैंने किया. तो मैनेज करना ना आपके अपने ऊपर होता है ना. आई हैव अ फ्रेंड हु इज इन सीक्स, उसके 3.8 समथिंग GPA, तो ही इज हैविंग फन एज वेल. तो वो उसका ये होता है कि मैनेज योर सेल्फ, बी स्मार्ट अबाउट इट. हाउ विल यू बी स्मार्ट अबाउट इट कि एक तो लेक्चर्स लाजमी लो, लाइक लेक्चर्स मत मिस करो, क्योंकि टीचर्स जो है ना दे गिव अवे their style and what they're trying to get out of you ना. ये सीखो, learn to read the instructor. मैं ये बात करता हूँ हर किसी से, तो आप भी करो, नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, एंड अपनी असाइनमेंट्स, क्विजेज, सब कुछ जो है ना consider it as your final exams. तो आप अगर, क्योंकि it's all a process ना, if you work hard for them you're gonna be well equipped for the midterms, you're gonna be well equipped for the midterms, and it's a chain reaction that follows. But अपना enjoyment इस पर ख़राब नहीं करना ना, अपनी पढ़ाई एंजॉयमेंट के पीछे ख़राब करनी है ना. तो अगर कोई इवेंट्स वगैरह है लाजमी करें, बट अगर रात को घर आते हो तो फिर अगर कोई चीज़ मुश्किल मिस हुई हुई है, कवर इट, डोंट डिले. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब नहीं करनी, जो कि मैं बहुत करता हूँ, लेकिन कोशिश मत किया करें. क्विज तो अच्छे से यार पढ़ लो, तो हो जाता काम. You mentioned आप golf भी खेलते हैं. Yeah. So is it like for therapy, fun, क्या किस लिए? गोल्फ से पहले मेरा जुनून था स्क्वाश का. मैंने सारी स्पोर्ट्स ही खेले, लेकिन स्क्वाश का इसलिए बता रहा हूँ, आई वाज द फेडरल बोर्ड चैंपियन ऑफ 2023 स्क्वाश का. So you have always been that social, popular, extroverted guy. बहुत talent. Yeah, you're an all-rounder guy. Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह, नो फ्लेक्स. माशाल्लाह, you're an all-rounder guy. तो लेकिन फिर मैंने फैसला कि लेट्स स्टिक टू वन स्पोर्ट ना, कि इसका आगे फ्यूचर इन अ सेंस मुझे फ़ायदा जो देगा. तो गोल्फ भी मुझे बहुत पसंद थी, स्क्वाश भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन स्क्वाश का ये कहते हैं इफ़ यू कैन स्टार्ट, तो फिर आप बचपन से ही लेके चलें उसको ना, ये वो उसका आगे स्कोप फिर आपका बढ़ना बहुत मुश्किल है. गोल्फ में होता है कि इट्स मोर ईजियर अगर आप मेहनत वगैरह करते रहे ना, और फॉर फन एंड थेरेपी एज वेल. और गोल्फ ऑल एजेस, लाइक बूढ़े भी खेलते हैं. सब खबरदार किसी ने कहा कि बुढ़ों की गेम है. आई गेट दैट अ लॉट, बट आई डोंट इवन गेट इनटू दैट आर्ग्यूमेंट. मेरे अपने भाई की आती है, लेकिन बट इट इज़ व्हाट इट इज़. तो फिर मैंने इसलिए चूज़ किया कि उसका स्कोप अच्छा था. नेशनल टूर्नामेंट्स में आई टेक पार्ट, मज़ा आता है. और तो फिर आई स्टिक टू गोल्फ एंड आई लव golf. I love you. If you met your past self, like the past Arham, what would you say him? अच्छा, इसकी इतनी मजे की स्टोरी है. There's a someone like मेरा फैन है या क्या, he has मैंने एक रील डाली थी उसमें ना कि who are you doing all this for ना.
फिर मैंने उसमें सीन कट हुआ फॉर हिम, वो मेरे यंगर सेल्फ की पिक्चर थी. एक फैन है, ही एक्चुअली मेड एन अकाउंट कॉल्ड यंगर अरहम. तो वो और वो रैंडम मेरी रील्स में ना लाइक 2-3 में नहीं करेगा, फिर चौथे पे उसका कमेंट आ रहा होगा ना कि कीप गोइंग एंड सच फन. तो फिर वाकई फील होता है कि इट वाज ऑल फॉर हिम. अदर यंगर सेल्फ से कि we have still loads to go, loads to improve. No one is perfect, no one can ever be perfect, but having the right, you know, क्या कहते हैं उसे, mindset या फिर perspective to actually try to get somewhere there, तो वो बहुत ज़रूरी होता है. और most of our time is lost in not taking action. मतलब हम बातें करते रहते हैं करेंगे मेरे समेत, तो वो फिर आप जो है ना खुद ही take action and be better. I've observed about you कि you are quite optimistic, हाँ. बहुत positivity, आपकी पूरी energy में it's radiating. हाँ. So I want you to give an advice सबको कि ऐसा mindset, were you always like that? हाँ, naturally yes, लेकिन obviously के चेहरे बहुत होते हैं. तो एक हमारी और चेहरा भी है. मैं राइटिंग करता हूँ, जैसे मैंने बताया, मैं शायर, लाइक उर्दू शायर तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, लेकिन मैं उर्दू और इंग्लिश बहुत करता हूँ ना. इट्स वेरी सैड पोएट्री यार ये हो ना. तो किसी बंदे ने सिर्फ मेरी वो देखी होगी, वो कहेगा कि यार ये बंदा एक है या डिफरेंट है. तो मुख्तलिफ फेसेस होने चाहिए, लेकिन ओवरऑल मेरा यही है कि यार क्योंकि ये बात है ना कि अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो फिर आप अपने आप का ही नुकसान कर रहे हो ना. नॉट कोई फ़ायदा उसे उठा नहीं रहा. तो कोशिश करो कि यार ऑप्टिमिस्टिक ही रहो, क्योंकि वक्त वही है ना, बदल जाता है. चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, इट डज वर्क आउट. तो मैं यही कहूँगा कि ऑप्टिमिस्टिक वैसे लाइक पीपल हु नो मी, यस आई एम दैट सोशल बटरफ्लाई काइंड, लेकिन बुरे वक्त तो हर किसी पे आते हैं, हम पे भी आते हैं. तो लेकिन उससे फिर आगे अपने आप को अपने खुद ही करना होता है. एंड इट्स ओके टू नॉट फाइंड आउट where you are at the moment. It's okay to give yourself some time, but ये कि don't lose yourself in the process वाली बात. Golf, content creation, poetry, excelling at academics, that's something आपके followers को पता ही होगा. तो इस podcast में would you like to tell something जो आपके followers ने पहले expect नहीं किया होगा, like ये चीज़ भी है, कोई चीज़ जो अभी आपने अभी तक नहीं बताई हो. Something about you. Squash का मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था. और something about me, ये हम अगर नहीं बताया तो अभी भी हिटर ही रखेंगे 100K पे मे बी. लेकिन यही है कि यार कि इतना कहूँगा कि अपने आप को ना एक चीज़ में इतना गुम मत कर दो कि वो फिर आप उससे निकल ना पाओ. तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है. We're gonna do a rap here. It was really amazing to talk to you. और मैंने बहुत बड़ों से भी बात की हुई है, छोटों से भी बात की हुई है, अपने एज ग्रुप के लोगों से भी बात की हुई है, बट मेच्योरिटी जो होती है ना, वो मुझे आज तक किसी में इतनी ख़ास नज़र नहीं आई है. बट आई थिंक 30 to 40 मिनट्स हम लोगों ने बात की है, एंड इट वाज रियली अमेजिंग. बहुत मुझे अभी भी बहुत कुछ पूछना है, और मैं एज अ होस्ट आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी कर रही थी, विच इज़ आई अपोलोजाइज फॉर इट. लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, आई अप्रिशिएट फॉर द थिंग कि आपके अंदर ऑप्टिमिज़म तो है ही, लेकिन इतनी छोटी सी पॉडकास्ट में आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोली हैं, ऐसे लेसन्स दिए हैं जो कि बहुत बड़े हैं. लाइक फॉर यू, फॉर आवर ऑडियंस बहुत बड़ी चीज़ है ये. आप अपना रैप करें, फिर मैं एक एंडिंग नोट दूंगा. क्यों द म्यूज़िक. अच्छा गाइज, इतनी बात कहूँगा कि ऑल फन एंड टॉक अपनी जगह, लेकिन ये है कि ये सब चीज़ें ऐसे नहीं आती, एक्सपीरियंस से ही आती हैं. और इफ़ यू आर इंस्पायर्ड बाई मी इन एनी वे, इट्स अ वेरी बिग विन फॉर मी. एंड ट्राई टू थ्राइव, टू नॉट कीप इट ऑल टॉक, एक्चुअली प्रूव इट विद योर एक्शंस. और मैंने एक चीज़ लिखी थी जो कि मैं हर जगह लाइक अच्छा, मैं अपने आप को थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी मानता हूँ, कोशिश है, लेकिन एक चीज़ मैंने लिखी थी खुद, जो कि मैं इस तरह की जो भी चीज़ करता हूँ, आई ऑलवेज एंड इट ऑन दैट नोट. मतलब मैं डिक्लेमेशंस वगैरह भी जितनी मैंने की हैं, उसमें मैं यही लाइक बोलता था कि इट्स लाइक 3-4 साल पहले लिखी थी कि यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, डेस्टिन्ड फॉर सक्सेस, बट यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू डोंट इवन ट्राई टू स्टार्ट योर क्वेस्ट. तो शुरू भी आपने ही करना है, तो फिर कामयाब भी आप ही होंगे. तो ये एक एंडिंग नोट मेरी तरफ से. Oh, I'm impressed for the 1568th time today.
Thank you, Aram, for coming to our podcast. It was really an honor and it was an amazing conversation. Thank you.